जय गुरु जी। सभी संगत को संगत जी, मैं सबसे पहले आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम थैंकफुल टू यू कि वर्ल्ड वाइड संगत ने इतना प्यार दिया, मेरी पहली वीडियो को इतना सत्कार दिया और इतने फ़ोन मेरे को आए हैं। कोई कंट्री नहीं जहाँ से मेरे को फ़ोन ना आया, कोई स्टेट नहीं है इंडिया का जहाँ से फ़ोन ना आया हो। सो मेरे को लगता है कि संगत सच सुनना पसंद करती है और संगत इतनी दुखी है। मैं क्योंकि सभी के साथ बात नहीं कर पाती क्योंकि बहुत फ़ोन कॉल्स मेरे को आ रही है। मैं एक ही बात बताना चाहती हूँ कि जो गुरुजी हैं, कोई भी गुरुजी होते हैं, हमारे गुरुजी इतने प्यारे थे क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको एक छत के नीचे बहुत कुछ दिया। और ये भी बताती हूँ कि गुरुजी होते हैं, जो हमारे गुरुजी हैं, कोई भी गुरुजी हैं, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। गुरुजी सबके लिए एक हैं, वो पुरानी संगत के नहीं है कि नई के नहीं है। सो सभी के लिए गुरुजी एक ही हैं। और आपने गुरुजी के बारे पूछा कि आंटी आप पे विश्वास है, आप गुरुजी के बारे बताओ। सो गुरुजी का जन्म दुग्गरी गांव में हुआ जो मलेरकोटला के नज़दीक है। गुरुजी ने गवर्नमेंट कॉलेज मलेरकोटला से बीए की, फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी से एमए गोल्ड मेडलिस्ट थे। गुरुजी बहुत विद्वान थे, बहुत बड़े। फिर उसके बाद गुरुजी गीता मंदिर रहे मलेरकोटला में। उसके बाद गुरुजी कभी चंडीगढ़, कभी किसी दोस्त के घर। तो मेडिटेशन जो भक्ति का रंग था उनका कॉलेज समय में था, क्योंकि उनके प्रोफेसर अब भी जीवित हैं जो गुरुजी को पढ़ाते थे। क्या गुरुजी धूप में बैठे रहते थे, तपस्या करते रहते थे। उसके बाद गुरुजी 1984 के बाद जलंधर चले गए, कदे किसी दोस्त वाले चले जाते सी। गुरु जी का बहुत प्यार सत्कार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਜਲੰਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਫ ਐਂਡ ਆਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ 1997 96 ਤੋਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2007 ਤੱਕ ਰਹੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ VIP ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਸੀ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਸੱਪ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੱਪ ਨਿਕਲਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਪ ਬੰਦ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਵੀ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਲਾ ਇਕੱਠ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ 100 ਬੰਦਾ 200 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਾ ਮੋਸਟਲੀ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ? ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਚੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਜਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਖੂਬੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ? 500। ਔਰ ਚੋਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਕਦੇ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 500 ਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੋਰੀਅਰ ਰਿਸੀਵ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਬੂਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਸਵਰੂਪਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੇਚ ਰਿਹਾ। ਅਰੇ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ आप लोग? गुरु जी बिजनेस के लिए बनाए थे। गुरु जी एक पूजा के लिए है। गुरु जी ब्रांड नहीं। आप क्या कर रहे हो?
किधर ले जा रहे हो गुरु जी को। और मैं ज़्यादा संगत को, सारी संगत बहुत प्यारी है, नई संगत इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है। मेरे को नई संगत के ज़्यादा फ़ोन आए हैं, पुरानी संगत के भी आए, क्योंकि पुरानी संगत भी अभी मेरे मेरे जैसे है सच बोलने वाले बहुत लोग बैठे हैं। 50% मैंने आपको बोला था पुरानी संगत, जिनको कोई लालच नहीं है, कोई बिजनेस नहीं कर रहा है मेरे जैसे ही। मैं भी गाती हूँ गुरु जी के, जाती हूँ, शुक्राने करती हूँ। और मैं आपको भी बोलती हूँ कि कोई ज़्यादा जो मैंने संगत जी सुना आपसे ज़्यादा कि हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा, अरे मेरी बात सुनो। मैं हाथ जोड़ के सभी को बेनती करती हूँ कि हम शुक्राने ज़्यादा किया करिए और हम शिकायतें कम करो। गुरु जी के पास जब भी जाते हो तो शुक्राने किया करो। अरे हम सुबह उठते हैं संगत जी, हमको एक दिन और मिल जाता है, हमारी सेहत ठीक है, हाथ ठीक है, पाँव ठीक है, सब काम कर रहे हैं। और जो दुख तकलीफ है वो तो आते रहते हैं ज़िंदगी में, कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। अगर सोचो हम जब गर्मी में फिरते हैं धूप में, एकदम एसी में जाते हैं तो कितनी राहत महसूस होती है। इसी तरह जब हम दुखों में रहते हैं और जब फिर सुख सुख में जाते हैं तो कितना आनंद होता है। इसी तरह अगर दुख ना हो तो सुख का एहसास ही ना हो, सुख की कीमत ही नहीं पता चलेगी आप लोगों को। सो थोड़ा थोड़ा दुखों में रहना भी सीखो। और बड़े बड़े बली पीर पैगंबरों पे भी भीड़ आई है, वो भी बीमार हुए हैं, वो उनको भी बीमारी आ जाती है, लेकिन ठीक है, हमारे गुरु जी की बहुत बख्शिश है, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होता है। कहीं मतलब रो मत, शिकायतें मत करो। आज के बाद ही आजमा के देख लेना, गुरु जी गुरबाणी में बहुत विश्वास करते थे। सुबह उठो, नहाओ धोओ और जपजी साहब का पाठ जरूर लाओ, भगवत गीता भी। और गुरु जी ये भी मैं साफ बताना चाहती हूँ, मैं भी गुरु जी की भक्त हूँ इतने सालों से। मैं राम मंदिर भी जाती हूँ, मैं वैष्णो देवी भी जाती हूँ, मैं गुरुद्वारा भी जाती हूँ, मैं बड़े मंदिर भी जाती हूँ, मैं एम्पायर स्टेट वाले छोटे मंदिर में भी जाती हूँ। सो सब एक है, एक ही शक्ति है, एक ही ज्योत है। जो परमात्मा है वो हर मंदिर मस्जिद में परमात्मा बसता है, और संगतों में भी गुरुजी बसते हैं। गुरुजी मंदिरों में नहीं बसते, गुरुजी कहाँ बसते हैं? साफ दिलों में, पवित्र दिलों में, उन दिलों में जो हमेशा शुक्राने ही करते हैं। वो रब की रजा में, गुरु की रजा में रहना भी आना चाहिए आपको। आप हमेशा शिकायतें करते हो, मेरा ये नहीं हुआ, मेरा, कई मेरे को फोन आए, हमारी शादी टूट गई, हमारा। देखो जी आजकल युग कैसा है, जो शादी का रिश्ता या जो भी सामाजिक मसले हैं वो ज़्यादा तो हमने सुलझाने होते हैं। कैसे सुलझेंगे? शांति करो, जिंदगी को ट्यूनिंग करनी, गुरुजी सिखाते कि ट्यूनिंग कैसे करनी है। सो जिंदगी है जो हम जी रहे हैं, इसको थोड़ा ट्यूनिंग करना सीखो। जैसे हम साज गाते हैं ना, सभी साजों को ऐसे करते हैं, बजाते हैं। अगर आप सोचो कि एक गोभी का फूल है, उसको ऐसे कैसे खा लोगे? स्वाद नहीं लगेगा ना उसमें। फिर उसको स्वाद बनाने के लिए सब्जी बनती है, मसाला, नमक, मिर्च, घी, फिर हम उसको कढ़ाई में डालते हैं, प्याज भूनते हैं, जो सब कुछ मिला के तो एक अच्छी सब्जी बन जाती है। उसमें नमक कम होगा तो भी अच्छी नहीं लगेगी, मिर्च ज़्यादा होगा तो भी अच्छी नहीं लगेगी। सो सब्जी में बैलेंस करके सब चीज़ें डालनी पड़ती है। और इसी तरह हमारी लाइफ है संगत जी, इसमें हर चीज़ को बैलेंस करके हमको चलना पड़ता है। दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे, शांति भी आएगी, परेशानियां भी आएंगी। अगर आप जिंदगी को बैलेंस करना सीख लोगे, ट्यूनिंग करना सीख लोगे, तो गुरुजी भी आप पे मेहर करेंगे। गुरुजी भी यही सिखाते थे कि जिंदगी को दुख सुख है जो हमारे साथ चलते हैं, उनको सहना सीखो, उनको बर्दाश्त करोगे, चलाओगे नहीं, शिकायतें नहीं करोगे, जो दुख है वो सुख में बदलने शुरू हो जाएंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि हम भी गुरुजी के अंडर रहे हैं, गुरुजी से बहुत कुछ सीखा हमने, तो इसीलिए हम सिखा रहे हैं। एंड मैं ऑफ एंड ऑन हर वीडियो में ये सिखाती रहूँगी। तीसरी वीडियो भी डालूंगी नई संगत को। मैं फिर एक बार सजदा करती हूँ, सच्ची आप लोग बहुत प्यारे हो। मैं चाहती हूँ कि आप जहाँ भी रहो, जिस देश में भी हो, इतने खुश रहो, इतने खुशहाल रहो। और आज से ही शिकायतें बंद कर दो, शुक्राने शुरू कर दो, पाठ शुरू कर दो, मेडिटेशन किया करो, टोटली सरेंडर करो गुरु जी को, टोटली सरेंडर कर दिया करो। सो देखना कैसे बरकतें आती है, कैसे लीला होती है गुरु जी की, कैसे आप शुक्राने करोगे गुरु जी को। सब सुख में भी शुक्राना किया करो। जब आप सुखी होते हो, खुश होते हो, तब भी मंदिर जाया करो, गुरुद्वारा जाया करो। दुख में तो सारे जाते हैं मांगने, शुक्राने करने भी जाया करो। मांगने कम जाया करो, शुक्राने करने ज़्यादा जाया करो।
सो मांगने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शुक्राने शुरू हो जाएंगे अपने आप रहमत होगी गुरु जी की, अपने आप बख्शिश होगी गुरु जी की। सो इसी के साथ मैं आज का वीडियो यही समाप्त करती हूँ। और मैं बड़ा प्यार करती हूँ आप लोगों से, इतने जुड़े हो। मैं सबको एक बार फिर बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे को इतना प्यार करते हो। और सभी ने बोला कि सुखी आंटी वीडियो डालते रहना। सो मेरा वादा है मैं 5-7 दिन के बाद आपको असलियत के साथ जोड़ती रहूंगी। गुरुजी की बहुत बातें हैं मेरे पास, और लेकिन सच्ची है। मैं हर बात जो करती हूँ उसका सबूत दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत पुरानी संगत है जो मेरे जैसे सब कुछ गुरुजी के बारे जानती है। हमारे गुरुजी शिवकारूप थे। गुरुजी पे सारे पीरों पैगंबरों की, गुरु नानक की, 10 गुरुओं की गुरुजी के पक्षे से, क्योंकि वो जपजी साहब का पाठ करते थे और वो भगवत गीता भी पढ़ते थे। गुरुजी सब धर्मों का सम्मान करते थे, सब धर्मों का सत्कार करते थे गुरुजी। सो गुरुजी नहीं कहते थे कि किसी धर्म में मत पढ़ो। गुरुजी को आप कहीं भी देख सकते हो, गुरुजी को किसी रूप में भी देख सकते। मैं तो जब गाती हूँ तो मेरे को तो सारी आंखें बंद करती हूँ, संगत में गुरुजी नजर आते हैं। जो मेरे को फोन करता सच्ची बात बताती है, मेरे को लगता सब गुरुजी का रूप है। तो मेरे को संगत के जब मैं वीडियो पहली डाली है तो मेरे को सपना भी आया गुरुजी का, और गुरुजी मेरे को दिखे पीले चोले में, और गुरुजी इतने उदास, इतने वीक हुए हैं गुरुजी। और मैं पूछ रही हूँ गुरुजी से, गुरुजी क्या हुआ? गुरुजी बोलते कि जो जो संगत मेरे साथ कर रही है, अरे आप भी देखो, ये देखो मैं चला रही हूँ नीचे, क्या कर रही हो संगत? एक लाइक लेने के लिए क्या झूठ मार रहे हो? ऐसे नहीं करोगे ऐसा। इतनी नई संगत डरी हुई है ना कि कर क्या रहे हैं ये लोग। एक सोशल मीडिया का गैंग बना है, ग्रुप में कह सकते, माफिया जो गुरुजी के बारे गलत अफवाहें। और एक लेडी तो गुरुजी के साथ फोटो एआई पे जफ्फी डाल के बोल रही है कि जोड़ी कैसे लगती है। अरे कैसे बख्शेंगे गुरु आप जी को? अरे कोई पॉडकास्ट कर रहा है जो गुरुजी को जानती नहीं, कोई ताश के पत्ते खोड़ के पता नहीं क्या गेमें खेल रही हैं, ऐसे करो गुरुजी ऐसे करेंगे। अरे नई संगतों को बेनती करती है, बचो इन लोगों से। आप मेडिटेशन करो, गुरुजी को ध्याओ, परमात्मा को ध्याओ, सब कुछ आपको घर बैठे बैठाए मिलेगा। दान करना भी अच्छी बात है, दान करो, रस दे के आया करो, राशन दे के आया करो। जहां जाना पैसे मत दो, राशन दो जहां भी जाना, वो ज्यादा लगता है पुण्य राशन का। सो आज की इन्हीं बातों के साथ मैं अब आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगली वीडियो में फिर जो इसमें रह गया मैं लड़ीवार ये वीडियो डालती रहूंगी। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत प्यार सभी को।